Good morning, everyone. Students, today we will start another chapter from economics of class 10th. And chapter is globalization and Indian economy. And student, globalization, a term totally new to you. It means in class ninth, in class 8th, you didn't heard about the globalization. So this is very interesting topic. And student, before we move further, it is important to know some basic history of the Indian economy, because we are talking about the globalization and its effect on Indian economy. So how was Indian economy at the time of independence? We all should know. At the time of independence, it means in 1947 and in 1950, student, Indian economy was not good. It means agriculture, primary sector was in stagnation, no growth. Then industrialization, no doubt, industrialization was done in second 5 year plan. बट जो टारगेट ग्रोथ रेट थी वो इतना हम अचीव नहीं कर पाए थे. सो the need of the globalization felt after it, and especially in 1991 when Indian government adopted LPG policy, liberalization, privatization and globalization. It means the removal of trade barriers, and Indian government invited the multinational corporation, the outside companies, that they can come to India and do the business. And student, this is mainly globalization. Globalization means the interconnection of the various economy. It means the interconnection between the one country and the another. And student, globalization is not just restricted to import and export, कि हम import and export कर रहे हैं, this is only a globalization. Globalization includes the technology, कल्चर, आइडियाज़, देन सोसाइटी, पॉलिटिक्स, ये सब ग्लोबलाइजेशन है. मतलब अगर हमारा कल्चर जो है बाहर जा रहा है, दिस इज़ ऑल्सो ग्लोबलाइजेशन. वहाँ की कोई फूड आइटम इंडिया में आ रही है, दिस इज़ ग्लोबलाइजेशन. कोई टेक्नोलॉजी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, दिस इज़ ग्लोबलाइजेशन. इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू ट्रेड. ग्लोबलाइजेशन इट इज़ अ वास्ट टर्म. इट इंक्लूड्स कल्चर, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट. कोई आइडिया जो है पॉलिटिक्स का वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है दैट बाहर की इकोनॉमीज़ पे, बाहर की पॉलिटिक्स पे अफेक्ट कर रहा है. दिस इज़ ऑल्सो अ ग्लोबलाइजेशन. It means it is a process of rapid integration and interconnection between the countries. And student, economic globalization means a process of rapid interconnection of investment, production, distribution, employment, trade among the countries of the world. When I am talking about the economic globalization, और economy का मैंने meaning आपको बताया था, that mainly the economy is related to production of the goods, distribution, market, money. सो जब हम एक कंट्री के साथ हम इन चीज़ों की डीलिंग कर रहे हैं कि अपने जो प्रोड्यूस गुड्स हैं वो बाहर भेज रहे हैं, या जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं अगर यहाँ आ रही हैं तो वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे इंडियंस को दे रही हैं. द ट्रेड, इट मीन्स आई कैन से द ट्रेड अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉन एज अ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन. देन few important terms, multinational corporations. बच्चे, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्या होती हैं? द कंपनीज विच हैव देयर बिजनेस इन मोर देन वन कंट्री आर कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस. एक ऐसी कंपनी जो एक से ज़्यादा देशों में जो है अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर रही हैं वो है मल्टीनेशनल कंपनी. इंडिया की कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो बाहर के देशों में हैं, तो वो इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं. और बाहर की बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो इंडिया में आकर ट्रेड कर रही हैं, तो वो MNCs हैं. लाइक पेप्सी हो गया, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, नाइक हो गया. ये सब जो हैं ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है. एंड बच्चे, इन आवर डेली लाइफ each and every second or third product we are using is a multinational corporation. Then few important terms, the investment and the foreign investment. The money that is used to assemble the factors of production such as the land, building, machinery are called investment. Suppose I am going to start a business, and for this, firstly,
no doubt the factor of production matter, land, labor, building, but the money that is used to assemble the factor of production, वो मनी जो मुझे लैंड लेने में या बिल्डिंग परचेज करने में, मशीनरी परचेज करने में लगेगी, वो इन्वेस्टमेंट है. इन सिंपल वर्ड आई कैन से बिजनेस स्टार्ट करना है तो पैसा तो होना ही चाहिए ना. कहाँ बिजनेस इस्टेब्लिश करना है, कैसे लेबर आएगी, कैसे मशीनरी, कैसे रॉ मटेरियल, दिस इज द इन्वेस्टमेंट. एंड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीन्स investment made in a country by a multinational company originated from some other country is called foreign investment. सपोज बाहर की जो कंपनीज हैं, पेप्सी है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, बच्चे ये जो हैं इंडिया में आकर अपना बिजनेस सेट करेंगी तो उनके लिए यह क्या हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया. या कोई इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जो बाहर के देश में बिजनेस एस्टैब्लिश करेगी. अभी मैं बताऊंगी पूरी लिस्ट के साथ कि कौन सी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडियन है, मतलब इंडिया की कौन कौन सी कंपनी जो बाहर जो है डीलिंग कर रही है, और बाहर की कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है, जापान की भी कुछ कंपनीज हैं, अमेरिका की भी कुछ कंपनीज हैं जो यहाँ आकर बिजनेस कर रही हैं, तो उनके लिए ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया. सपोज मैंने कहीं बाहर इन्वेस्ट किया तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट मेरे पॉइंट ऑफ से, किसी बाहर की कंपनी ने यहाँ आकर इन्वेस्ट किया तो उनके पॉइंट ऑफ से वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गई. देन फॉरेन ट्रेड, the trade or buying and selling activity among the different countries are called foreign trade. It includes import and export. As you know, import means buying of goods and services from the rest of the world. Suppose इंडिया में कुछ नहीं है या इंडिया में किसी चीज़ की कमी है तो वो बाहर से हम मंगवाते हैं, दैट इज़ अ इम्पोर्ट. एंड एक्सपोर्ट, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है एग्रीकल्चर के लिए तो हम मेनली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं बाहर भेजते हैं टू अनदर फॉरेन कंट्री इज़ अ एक्सपोर्ट. Then the way of interconnection, मैंने कहा globalization is the interconnection of the various economy of the different economies of the world. So ways of interconnection, कैसे हम interconnect करते हैं. The first one is spreading the production across the countries, interlinking production by setting up production center in the different country, join the production of MNC with the domestic companies, and free trade among the countries. फर्स्ट है बच्चे स्प्रेडिंग द प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री. मैंने बोला मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं एक से ज़्यादा देश में जो है बिजनेस करती हैं तो वो अपना जो प्रोडक्शन सेटअप है वो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में लगाती हैं. इससे जो है कंट्रीज़ का इंटरकनेक्शन होता है. दैट इंटरलिंकिंग द प्रोडक्शन बाय सेटिंग अप द प्रोडक्शन सेंटर इन द डिफरेंट कंट्रीज. या बच्चे इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन मीन्स ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो अपने प्रोडक्शन सेंटर्स जो हैं वो सिर्फ एक कंट्री में लगाए, या अलग अलग कंट्रीज़ में भी अगर बच्चे प्रोडक्शन सेंटर्स होते हैं तो वो कहीं ना कहीं से इंटरलिंक होते रहते हैं. देन जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ MNCs विद द डोमेस्टिक कंपनी. जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ MNC मीन्स बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इंडिया में आती हैं या कहीं पे भी आती हैं तो वो मेनली जो है कॉन्टेक्ट में आती हैं लोकल प्रोड्यूसर्स के या डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के, डोमेस्टिक कंपनीज़ के, और उनसे कहती हैं कि हाँ भाई हम आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इसके बदले में जॉइंट प्रोडक्शन होना चाहिए. जॉइंट मीन्स एक जॉइंट वेंचर कर लेना, एक हाथ मिला लेना डोमेस्टिक कंपनी से कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ को, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी किसी देश में जो टोटली अननोन है उनके लिए वहाँ जा रही हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स की हेल्प तो उनको चाहिए ना जो ऑलरेडी उस कंट्री में इस्टेब्लिश हैं. और द फ्री ट्रेड अमंग द कंट्री, या फिर वो क्या करती है इंटरकनेक्शन, फ्री ट्रेड करती हैं, हर कंट्री में जाकर अपना बिजनेस सेटअप करती हैं, अपनी कंपनी सेटअप करती हैं और ट्रेड करना स्टार्ट करती है. देन स्प्रेडिंग प्रोडक्शन ऑफ नोकिया मोबाइल. हियर यू कैन से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है इनकी USA में, हेडक्वार्टर्स हैं फिनलैंड में, हार्डवेयर है चाइना में, एंड सॉफ्टवेयर बाय माइक्रोसॉफ्ट इन इंडिया एंड USA. इट मीन्स बच्चे देखो इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन बाय सेटिंग अप प्रोडक्शन सेंटर इन द डिफरेंट कंट्रीज और स्प्रेडिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज. इसमें से सेकेंड पॉइंट यहाँ क्लियर हो गया कि टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है USA में, हेडक्वार्टर्स हैं फिनलैंड में, देन हार्डवेयर है चाइना में, एंड सॉफ्टवेयर बाय माइक्रोसॉफ्ट इन इंडिया एंड USA. इसके बाद बचे बेनिफिट बाय स्प्रेडिंग प्रोडक्शन. बेनिफिट बाय स्प्रेडिंग प्रोडक्शन का मतलब एक जगह से 1 2 3 4 बहुत अलग अलग जगह पे प्रोडक्शन करने से क्या फ़ायदे हैं. क्वालिटी एंड चीप लेबर. बच्चे जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं अगर वो अलग अलग जगह प्रोडक्शन करेंगी तो हर जगह की प्रोडक्शन की उनकी जो कॉस्ट है वो भी अलग अलग है. इट मे बी पॉसिबल कि कहीं उन्हें महंगा पड़ रहा हो, मतलब लेबर महंगी पड़ रही हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी कंट्री में, स्पेशली इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ आ रही हैं वो इंडिया में इसलिए ज़्यादा आ रही है क्योंकि इंडिया इट इज़ अ
लेबर इंटेंसिव कंट्री, यहाँ लेबर बहुत सस्ती है, तो शायद इस वजह से इनका ये बेनिफिट है कि क्वालिटी एंड चीप लेबर प्रोवाइड है, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इससे जो उनकी प्रोडक्शन है वो की कॉस्ट वो कम हो जाती है, क्योंकि लेबर्स को जितनी कम वेजेस देनी पड़ेंगी उतना ही कॉस्ट क्या होता जाएगा, कम। देन वाइडर मार्केट, इंडिया बहुत फेमस है अपनी मार्केट के लिए। और बच्चे बेटर क्वालिटी ऑफ मटेरियल, उनको क्वालिटी मटेरियल का बहुत अच्छा मिल जाता है, फाइनल प्रोडक्शन नियर टू द मार्केट एंड मैनी मोर। इट मीन्स बच्चे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक फैक्टर्स की। अगर मैं किसी भी इंडस्ट्री को या किसी भी कंपनी को सेटअप करना चाहती हूँ तो कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं मेरे माइंड में होना चाहिए। लेबर चीप, क्वालिटी जो है अच्छी होनी चाहिए लेबर की, मतलब थोड़ा सा स्टफ़, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ लेबर क्लास की बात कर रही हूँ, सुपरवाइजर्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। देन लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वाइडर मार्केट, बेटर क्वालिटी ऑफ मटेरियल। और बच्चे जितनी भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं अगर इंडिया में आ रही हैं तो इन्हें ये सब फैक्टर इंडिया में मिल रही है, प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट मिल रही है। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स नो डाउट उनको लॉसेस हुए से स्टार्टिंग में 1991 में। जैसे मैं एग्जांपल दूं बच्चे, अगर एलजी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है और वीडियोकॉन जो है वो डोमेस्टिक है, मतलब इंडिया की कंपनी है। और बच्चे 1991 में एलपीजी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जब एलजी आई थी तो पहले घरों में वीडियोकॉन होता था, ठीक है, लेकिन इतनी कंपटीशन दिया एलजी ने आकर कि वीडियोकॉन एक टाइम पे फेल हो गया था। मतलब घर घर में जो पहले वीडियोकॉन होता था टीवी या कोई भी प्रोडक्ट, अब वो एलजी ने रिप्लेस कर लिया। तो बच्चे बहुत सारे फैक्टर्स हैं which affects the globalization. Then interlinking production across कंट्रीज, आप ये देख सकते हैं इसमें। देन बेनिफिट ऑफ इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन फॉर एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को बच्चे सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या हो रहा है। बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वो दूसरे देशों में जाके इन्वेस्ट कर रही हैं, इंडिया की जो कंट्रीज़ हैं वो बाहर इन्वेस्ट कर रही हैं, तो इसका सबसे मेन बेनिफिट क्या है। स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस स्ट्रिक्टली एज पर द डिमांड ऑफ द कस्टमर, as the goods are produced and sold in one country, the cost is less and can sell at the lower price. Better consumer response as the goods are produced in their locality. मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को बच्चे सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस स्ट्रिक्टली एज पर द डिमांड ऑफ द कस्टमर। इट मीन्स जो भी वो बना रहे हैं प्रोडक्ट वो कस्टमर के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, कस्टमर जैसा चाहता है वैसा बना रहे हैं, तो उनको प्रॉफिट अच्छे खासे हैं, यहाँ से सेल उनकी अच्छी है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत कम आती है, क्योंकि वो मेनली उन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ लेबर सस्ती है या जहाँ जो है मटेरियल सस्ता है। सो दे कैन the cost of production is less, they can sell at the lower price and better consumer response as the goods is produced in their locality.